ওয়েলকাম টু ফিল্মগাসিপ বন্ধুরা। আর আমাদের সাথে আজকে আছে সোয়ানি ম্যাডাম। তো সবার আগে তুমি বলো, তুমি কেমন আছো? হরে কৃষ্ণ, আমি খুব ভালো আছি। তুমি কেমন আছো? আমিও খুব ভালো আছি। আর আমাদের অডিয়েন্স জানতে চায় এটা যে তুমি 2017 মডেলিং করতে, তারপর তুমি এই মিস ওয়েস্ট বেঙ্গল ছিল সেই টাইমে। হ্যাঁ, রানার আপ ছিলে, হ্যাঁ অবভিয়াসলি রানার আপ ছিলে। তারপর তুমি বম্বে গেলে, বম্বে গিয়ে তুমি দুটো সিনেমা করলে। তোমার এই স্ট্রাগল আর তোমার জার্নির ব্যাপারে আমাদের অডিয়েন্সকে বলো। গিয়ে সিনেমা করিনি যদিও, কারণ ওই বিউটি পেজেন্টার পরে আমি প্রচুর ব্র্যান্ডের সঙ্গে ওখানে কাজ পেয়েছি, এরকম নয়। তারপরে 2018-এ আমি বম্বে যাই। তো তারপর থেকে স্ট্রাগল বলতে ওখানে ক্যাটালগ শুট করছিলাম, গিয়েই তো কেউ ওরকম ভাবে পায় না, প্রচন্ড মানে হয় নানান রকম। তাছাড়া আমি নিজে বাঙালি একজন, ঠিক আছে, মানে চ্যালেঞ্জটা অনেকটা বেশি ছিল। তারপরেও আমি নিজের ওখানে চলার জন্য এই ক্যাটালগ শুটস, তারপরে আদার্স সবকিছু ট্রাই করতে থাকি। তারপরে ঠিক একটা বছর পরে আমি একটা ফিল্মে আমি কাজ করি। তো কাজ করি ইন দ্য সেন্স, ওটা ঠিক কাজটা শেষ হয়, শুটিং শেষ হয় 2019-এর নভেম্বর-ডিসেম্বর নাগাদ। জাস্ট শেষ হওয়ার পরেই কোভিডের যে পিরিয়ডটা শুরু হয়, তখন লকডাউন ঘোষণা করা হয়। তারপর থেকেই আমি ওই কলকাতায় চলে আসি। আসার পর অনেকটা সময়ের জন্য দেখছি যে এরকম লকডাউন হয়েছে সবকিছু। তো আমার একটা খুব পছন্দের সাবজেক্ট ছিল, সেই সাবজেক্টটা নিয়ে পড়াশোনা শুরু করলাম। বসে বসে তো বোর হয়ে যাচ্ছিলাম না, তো পছন্দের সাবজেক্টটা নিয়ে পড়া শুরু সেই করলাম। পছন্দের সাবজেক্টটা কি? আসলে আমি একটা অন্য জগতের সঙ্গে যুক্ত, হঠাৎ করে মানে হট করে বলতেও চাইছিলাম না, কিন্তু তুই জিজ্ঞেস করছো বলছি। তখন আমি ওটা অ্যাস্ট্রোলজি, নিউমোরোলজি এইসব নিয়ে পড়া শুরু করেছিলাম দিল্লির একটা ইনস্টিটিউট থেকে। তো এতটাই আমি পছন্দ করতাম সাবজেক্টটা, শুধু অ্যাস্ট্রোলজি নিয়ে নয়, এর প্রত্যেকটা মানে জিনিস, যেমন অনেক কিছু আসে, বাস্তু আসে, নিউমোরোলজি, পালমিস্ট্রি, গ্রাফোলজি, আমি প্রত্যেকটা সাবজেক্টেই পড়া শুরু করলাম। কারণ সময়টা অনেকটা ছিল, 2019-এর পরে আমি 2020 চলে গেল, 21, তারপরে 22-এও আমি যাইনি বম্বে। 2-3 বছর ধরে এইসব নিয়ে পড়াশোনা করছিলাম। 22-এ গিয়ে আমার ফ্ল্যাটের কিছু কাজ ছিল, তো সেই সব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাওয়াতে 22-এর শেষের দিকে আমি আবার বম্বে যাই। এবং বম্বে গেলেও আমি কখনো মানে দীর্ঘ সময় ধরে থাকিনি ওখানে, মানে যাওয়া আসা করতাম, ঠিক আছে। তো এখানে যেহেতু সব ফ্যামিলি রয়েছে, সবাই রয়েছে, আমি কখনোই ওইভাবে থাকিনি। তো যাই হোক, তারপরে 2023 এই যে গেলাম আমি, প্রায় 22-এর লাস্টের দিকে গিয়েছিলাম। তখন আবার আর একটা ফিল্মে আমি কাজ করি, এবং তখন সেই কোভিডের ফিল্মের ওইটাও রিলিজ করে তখন, মানে এই 2 বছরে কোভিডের জন্য ওরাও মানে ব্যাপারটা করেনি তখন রিলিজ। 2023-এ আবার আর একটা ফিল্মের আমি কাজ ওখানে যাই, এবং লাইন আপ তো চলতেই থাকে, তো ফোনের মধ্যে ছিল যোগাযোগ। 2023-এ যখন আবার আমি এখানে এলাম লাস্টের দিকে ঠিক, তারপরে 2024টা যেই পড়লো, সময়টা আমার জন্য অনুকূল ছিল না। মানে আমি যদিও খুব পজিটিভ অ্যাফার্মেশনের সাথে চলি, কোনো কিছু লাইফে নেগেটিভ কিছু হলে আমি কারোর আচ্ছা, সাথে দু শেয়ার হাজার করি না। চব্বিশে কি হয়েছিল এমন যে তোমার সময়টা অনুকূল ছিল না? আসলে 2024-এ আমি আমার বাবাকে হারিয়েছি। ফার্স্ট একদম জানুয়ারি পড়লো তখনই আমি হারিয়েছি ওনাকে। তো মন মেজাজ আমার, কারণ উনি আমার কাছে অনেকটা মানে অনেক সাপোর্ট, অনেক কিছু, মানে মেন্টালিও আমি নিতে পারছিলাম না। তো কয়েক মাস আমি ওইভাবেই কেটে গেছিল। তারপরে যখন আবার ভাবলাম যে না, আমি আবার সবকিছু শুরু করব, কাজে যাব, বম্বে ফেরত, ঠিক যাবার সময় আমি টিকিট করি, সব করি, তারপরেই আমার অ্যাক্সিডেন্ট হয়। মানে অ্যাক্সিডেন্ট হয় ইন দ্য সেন্স, আমি রাস্তায় এত হিল পরে শ্যুট করি, এত ফ্যাশন শো করি, কিন্তু কখনো এরকম হয়নি সামান্য একটা স্লিপার পরে আমি জাস্ট একটা দড়িতে পা লেগে পড়ে গিয়েছিলাম, ঠিক আছে। পড়ে গিয়ে আমার সেকেন্ড মেটাটার্সাল বোনটা ফ্র্যাকচার হয়েছিল, যার কারণে আমার প্রায় আরো 6 মাস এখানে আমাকে বসে যেতে হলো। প্লেট বসেছিল, রেস্টে ছিলাম। তো আবার এই 2025 শুরু হয়েছে, 2025-এ আবার আমি আবার নতুন করে সবকিছু, এই বম্বে যাওয়া, আবার গেছি, কাজ শুরু করছি। তো একটু স্ট্রাগল পিরিয়ডটা একটু, মানে এখন এই যে 1-1.5 বছর গ্যাপ গ্যাপ করে আমার এই যে মানে পুরো লম্বা টানা যে কাজটা হয় না কখনোই, এই গ্যাপটা হয়ে যায়, ঠিক আছে। এই গ্যাপটার পরে আবার এখন যে গেছি, এখন একটু যেন মনে হচ্ছে একটু বেশি স্ট্রাগল করতে হচ্ছে। কারণ হচ্ছে আমি না এখন সেইভাবে ক্যাটালগ শুট করতে গেলে কি হয়, অত ঘন্টা দাঁড়িয়ে হিল পরে করতে হয়, আর সেক্ষেত্রে আমি এখন কমফোর্টেবল হচ্ছি না হিল পরে। মানে এখনো প্লেটটা বসানো আছে, তো ডক্টর আমাকে বলছে যে এখন 2 বছর লাগবে প্লেটটা বের করতে। তো সেই ক্ষেত্রে আমার বাড়িতেও বলছিল যে শুট যখন মানে এরকম হিল পরে যখন শুট করছি না, তো নর্মাল, আমার তো প্যাশন অ্যাক্টিং বরাবরই। তো সেই দিক থেকে সাইডে এই মডেলিং করছিলাম, এগুলো ঠিক আছে, এগুলো দরকার সবারই কাজের ক্ষেত্রে। বাট অ্যাক্টিং এর চেষ্টা এখনো, কাজের কথাবার্তা চলছে, হবে।
কিন্তু তার পাশাপাশি ভাবছি এখন বাড়ি থেকেও বলছে তুই এত খরচ করে এই অ্যাস্ট্রোলজি এই সমস্ত বিষয়টা শিখেছিস, ভালোও লাগে, তো এটাকে নিয়েও পাশে কাজ শুরু কর। তো শুরু কর বলতে করি, অনেকেই জানে, আমার কাছে যারা রয়েছে তারা জানে অবশ্য, এটাই। আমার একটা কোশ্চেন আছে, তুমি যে বললে যে তুমি অ্যাস্ট্রোলজি নিয়ে পড়াশোনা করেছো, আর 2024-এ তোমার সাথে অনেক কিছু খারাপ হয়েছে, মানে একটা না অনেক কিছু খারাপ হয়েছে, সো এটাও তো মানে নাম্বারের মধ্যেই পড়ে, তা তুমি এটাকে কি হিসাবে নিয়েছো? আমি সবসময় ওই আগেই বললাম না, আমি যা কিছু হয় লাইফে সবসময় পজিটিভ ভাবেই নিই। আট মানে যে যেটা 4 আর 8-এর কম্বিনেশন কিন্তু সবথেকে খারাপ, কিন্তু এটা আমি শুনেছি। এই আর্ট যেটা বলে লোকে ভয় পায়, সেটা হচ্ছে আমাদের গ্রহরাজ শনি দেবতার। তো আমার ক্ষেত্রে কিন্তু ওনার খারাপ কিছু নয়, মানে আমার সবসময় উনি ভালোই হয়। আমার ইনফ্যাক্ট ভাইয়া আর সাড়ে সাথী সবের মধ্যেও আমি অনেক অনেক ভালো কাজ করেছি। আমার নিজের ইনফ্যাক্ট হাস্য আমার সাথে চলছে, ওই জন্য আমি কি না, বলবো, না, আলাদা আর এরকম- কিছু করার না, না, নেই আর। ভয় পাওয়ার কিছু নেই, কারণ গ্রহরাজের এটা একটা মিথ চলে আসে, জানো তো, মানুষের যে গ্রহরাজ মানে শনির সাড়ে সাথী চলছে মানেই খারাপ, এরকম হয় না। আমি নিজে আসল ব্যাপার গাইস খারাপ না, ইনস্ট্যান্ট কর্মা, এটা মনে রাখবেন। একদম একদম কর্মা ফল, এগুলো সবকিছুই আমি এটা মনে করি। আর আমার ক্ষেত্রে এটা 2024 বলে তুমি যেটা ভাবছো যে না এটা 8 সংখ্যা আসছে সেই জন্য আমার সঙ্গে কোনো ব্যাপার, এরকম নয়। আর হচ্ছে আমি সাড়ে সাথী চলছে, ঢাইয়া চলছে, এই সময়েও আমি অনেক কিছু ভালো কাজ করেছি। ভালো মানে মানুষ বোঝে শুধু টাকা পয়সা আমার কি হলো লাভ সেটা, বাট ডেফিনেটলি আমি সব দিক থেকে আমি অনেক ভালো ফল পেয়েছিলাম। কিন্তু আমার গ্রহরাজের আমি অ্যাকচুয়ালি কুম্ভ রাশি, অ্যাকুয়ারিয়াস, তো আমার সবসময় ভালোই হয় গ্রহরাজের জন্য। কিন্তু আমি ওইভাবে দেখছি না যে 2024 এই 8 সংখ্যা এবং শনির জন্যই যে আমার খারাপ হয়েছে, এটা আমি দেখছি না। আমি বললাম, আগেই বলেছি আমি ভীষণ পজিটিভ, এবং এই জন্য না আমার এই যে এত কিছু হয়ে গেছে 2024-এ, আমি বাবাকে হারানোর পর অ্যাক্সিডেন্ট থেকে শুরু সবকিছু, আমার অনেক কাছের বন্ধু বান্ধব থেকে শুরু করে প্রচুর মানুষ জানেই না আমাকে, এখন বলে যে এত কিছু হয়েছে, একটা বছর পুরো গায়েব ছিলিস। আজকে আমি আর আমাদের অডিয়েন্স তোমাকে নতুন রূপে দেখছি। এটা নতুন লুকের কি আছে, আমাকে যেরকম ভাবে রাস্তায় শুট করি, শুটের যেরকম ক্যারেক্টার থাকে সেইভাবে দেখে। আমি আজকে এরকম কোনো প্ল্যান ছিল না, বাড়িতেই ছিলাম, তারপরে আমি বাড়িতে যেভাবে থাকি সেইভাবে আজকে দেখছো। আর হ্যাঁ, আর সব থেকে বড় কথা দেখো, আমি এটা জানি না কতটা লোক ভালোভাবে নেবে, মুসলিমরা তাদের নিজের ধর্মটা এত ভালোভাবে দেখে, মানে তারা যখন দেখবে নামাজ পড়ে বা এ করে, তারা টুপি পরে, তাদের কেউ বলেন আপনি টুপি পরেছেন কেন। আমাদের দেখবে হঠাৎ করে যখন আমরা কখনো এইরকম, ধরো আমি আমার যে ভগবান আমি যাকে মানি, ধরো আমি তিলক পড়লাম তখন বা মালা পড়লাম, তখন লোকে বলে যে না তোমাকে এরকম করে দেখছি কেন। তো ব্যাপারটা দেখছো, মানুষের এগুলো আমাদের চিহ্ন, আমরা সেটা ভুলে গেছি, আলাদা ব্যাপার। কিন্তু এটাই আমার মনে হয় যে আমি এটাকে ধারণ করেছি, আমার তাতে কোনো অসুবিধা নয়। যখন শুট হবে শুটের মতো করে থাকবো। আমি এখন বাড়িতে অন্য পরিবেশে, আমার এরকম কোনো ব্যাপার নেই, আমি বাড়িতে যেরকম থাকি মানে ওরকমই রয়েছি। লিভ ইন রিলেশনশিপ না নন লিভ ইন রিলেশনশিপ? অফকোর্স নন লিভিং রিলেশনশিপ। এখন এটা দেশের একটা অনেক মানে কি বলবো, ভাইটাল ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়ে। হ্যাঁ একটা ন্যাশনাল টপিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেক্ষেত্রে আমি এটা হিন্দিতেই, এটা সম্পর্কে একটু আমি ডিটেলসে বলতে চাইবো, তাই আমি তোমাকে ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড আমি হিন্দিতেই, হ্যাঁ বলতে পারো, বলতে পারো। হিন্দিতেই এর সম্বন্ধে আমি অনেক কিছু বলার আছে। अभी जो लिव इन रिलेशनशिप को लेके देश में इतना हलचल हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये है, देश में ऐसे हलचल बहुत होता रहता है, और आज देखिए सोशल मीडिया थ्रू हम बहुत कुछ घर बैठे जान पाते हैं, राइट। कुछ लोग मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग इसका दुरुपयोग जरूर करते हैं। मुझे क्या लगता है पता है, सोशल मीडिया में जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इसका जो पॉलिसी है ना उसको थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। कुछ लोग ना चंद पैसों के लिए, फेम के लिए ना सोशल मीडिया में आकर के टिप्पणियां देते हैं, भले उनको ना उस विषय में कोई पता ना हो, क्योंकि ऐसा नहीं होता है सबको सब कुछ पता है। चीजों को गहराई से अगर आपको पता है फिर आप आके बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको कुछ पता ही नहीं है, आप एक वीडियो को एडिट करके सिर्फ फेम लाइमलाइट में आने के लिए आप आके टिप्पणियां देते हो, तब जाके हलचल होती है। तो आप लिव इन रिलेशनशिप को सपोर्ट करते हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं। ये तो वही बात हुआ ना, पहले एक ऐड आता था घड़ी डिटर्जेंट का, पता है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पर अभी तो जमाना मॉडर्न हो रहा है। नहीं, जमाना मॉडर्न हो रहा है, पर ये चीज क्या है ना, मुझे लगता है आप अगर किसी को पसंद किए हो, या फिर आपके घर वाला आपके लिए किसी को पसंद करके रखा हुआ है, तो आपको उनको जानने के लिए उनके साथ पति पत्नी की तरह रहने का मुझे लगता नहीं कोई मतलब है। और सबसे बड़ी बात है, माता पिता कभी
इस तरह का डिसीजन कभी लेते नहीं है आजकल के बच्चे। कुछ बच्चे लोग, मैं सभी की नहीं बात कर रही हूँ, कुछ बच्चे लोग तो मनमानी करते हैं, पिता माता को बोलते हैं, मनवाते हैं, फिर नहीं मानते हैं तो उनके अगेंस्ट में जा करके लिव इन में रहते हैं, राइट। और भी देखा गया है कि माता पिता को पता भी नहीं है, उनको पता है कि हाँ मेरे बच्चे गए हैं, दूसरे राज्य पे गए हैं, पढ़ने गए हैं, तो वहाँ पे जा करके उन्होंने लिव इन में रह रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद कोई फ्रिज में, कोई जंगल में, है ना, कोई ड्राम में पैक हो रहा है। तो अगर सोशल सिक्योरिटी नहीं है ना, आप अगर किसी को शादी करके किसी के साथ रह रहे हो तो एक सोशल सिक्योरिटी होता है, तो वहाँ पे वैसा कुछ है ही नहीं। अभी मेरा मानना है कि आपको पढ़ाई करना है, आपको करियर में आगे बढ़ना है, पहले आप वो कंप्लीट कर लो, उसके बाद शादी करो। अगर आप जिससे पसंद करते हो, अगर उससे अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो तो आप शादी के बाद भी कर सकते हो। अगर आपको ज़रूरी है कि अभी शादी करना है तो आप शादी करके उनसे अंडरस्टैंडिंग करके, क्योंकि आजकल देखा गया है बहुत घर में, ससुराल में बहू का पढ़ाई वगैरह सब करते हैं, राइट। पर क्या है, लिव इन रिलेशनशिप ऐसा हो गया है कि आपको पढ़ाई भी करनी है, करियर में भी देखना है, शादी भी नहीं करना है, और दूसरे मतलब जिससे प्यार करते हो आप उसी के साथ भी रहना चाहते हो। तो ये क्या है ना, शास्त्र का विरुद्ध आचरण है। आज जो मतलब जो चल रहा है देश में, ये इसी को लेकर चल रहा है कि आप रहो, ये आपका पर्सनल मैटर है, पर क्या है, ये धर्म के विरुद्ध है, ये वेस्टर्न कल्चर है। प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्ध आचार्य जी ने जो स्टेटमेंट बोला है उसको लेके बहुत लोग विरोध कर रहे हैं, उसके बारे में आप बोलिए। सबसे पहले आपने जो महात्मा का नाम बताए वो मेरे पूज्य गुरुजी है। आज उनके आशीष है, इसलिए उनके लिए हम 2 शब्द कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। अब आते हैं गुरुजी के स्टेटमेंट पर। मुझे समझ में नहीं आ रहा है आज जो विरोध कर रहे हैं उनका क्या प्रॉब्लम है, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा उनको परेशानी किस लिए हो रही है, क्योंकि वो इसी श्रेणी में आते हैं। आज गुरुजी ने यही कहा ना कि आप अगर 4 रिलेशनशिप में रह चुके हो, उसके बाद विवाह करोगे तो आपका जो गृहस्थ जीवन है वो सही से आप नहीं चला पाओगे, क्योंकि आप कंपैरिजन करोगे। लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना, गंदगी का खजाना। अरे हमारे यहाँ पवित्रता के लिए जान दे दी। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो पवित्रता के लिए जान दे दी, लेकिन छूने नहीं दिया शरीर को। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा। उन्होंने तो यही कहा ना, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करेगा उसका गृहस्थ जीवन बहुत अच्छे से चलेगा। जैसे पहले जमाने में यही होता था, पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ जीवन, फिर वानप्रस्थ, फिर आते थे संन्यास। पहले यही होता था। इस जनरेशन का जो भी विचारधारा है वो लेके हम बात नहीं कर रहे, मतलब वो तो हो ही सकता है, ठीक है, उसमें वो लोग कंफर्टेबल है, परंतु गुरुजी ने जो कहा है वो तो शास्त्र को अनुसार बात किया है, धर्म अनुसार बात किया है। अगर कुछ लोगों को ये धार्मिक बातें, शास्त्रों का बातें समझ में नहीं आ रहा है तो न मत आए, तो इसमें विरोध करने वाली क्या बात है? इस बात को विरोध करने वाले लोग पहले तो खुद का चरित्र का पतन कर लेते, फिर दूसरों का पतन का प्रेरणा बनती है। अच्छा ये बताओ, इनको विरोधी करना है तो सोशल मीडिया में चलने वाले वल्गैरिटी का विरोध क्यों नहीं किया इन्होंने? हाँ, अच्छा, हाल ही में एक झिंगुर बाबा, उनके बाद सामने आया था ना, तब क्यों नहीं किया इन्होंने? अच्छा, ये लोग तब कहाँ थे जब खुशी मुखर्जी जैसी लड़कियां अर्धनग्न होके पब्लिक प्लेस में चल रही है? अच्छा, मैं मान लेती हूँ उनका ये ब्रेड एंड बटर है, बट इसके लिए शूटिंग प्लेस होती है ना, तो आम जनता के सामने ऐसे पहन के चलने का क्या मतलब है? मतलब इनको जहाँ पे विरोध करना है ये नहीं करेंगे, इनको सिलेक्टिव लोगों को करना है विरोध, एकदम टारगेट कर करके इन्होंने सिलेक्टिव लोगों को करते हैं। अब आते हैं मशहूर कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य जी के स्टेटमेंट पर। कुछ लोग जो असामाजिक लड़कियां, जो मैं नाम लेना जरूर चाहूंगी, ये खुशबू पटानी जैसे लड़कियां,
तो ये जो एडिटेड वीडियो लेकर के जो भला बुरा बोल रहे हैं, आपने शायद देखे होंगे वो वीडियो। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट। You should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of this society, all the fucking namards of this society is following this bastard. Remember, he is saying लड़कियां लिव इन में होती मुंह मार के आती। उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते? क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है? और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत है? ये खुशबू पटानी जो भी वीडियो में बोल रही है वो वीडियो अधूरा है। ये पूरा वीडियो, पूरा जो स्टेटमेंट था, मैं आपको छोटा करके बोल रही हूँ। अयोध्या आचार्य जी सिर्फ महिलाएं को नहीं बोला है, कुछ महिलाएं, पुरुष, ये उन्होंने मेंशन किया है। फिर भी क्यों ये खुशबू पटानी जैसे लड़कियों को मिर्ची लग गई मुझे पता नहीं है, क्योंकि मुझे पता नहीं कि ये लोग समाज के लिए करते भी क्या है। मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं जब भी वृंदावन जाती हूँ, मैं गौरी गोपाल आश्रम में जरूर जाती हूँ, वो अनिरुद्ध आचार्य जी का है। तो वहाँ पे जब वो कथा सुनाते हैं, वहाँ पे 80% महिलाएं होते हैं, तो उनको बुरा नहीं लगा। तो इनको ही क्यों मिर्ची लगी है? क्योंकि इन्होंने क्या है, लाइमलाइट पे आने के लिए ना एक वीडियो को कट करके, एडिट करके इनको बदनाम किया जा रहा है। मतलब आपको लग रहा है कि वो ये जानबूझ के कर रहे हैं? ऑफ कोर्स जानबूझ के कर रहा है। क्योंकि बस वो शायद लाइमलाइट है, वो तो इतनी फेमस एक एक्ट्रेस की बहन है, फिर भी आप वो ये कर रही है। आई डोंट थिंक सो। इससे पहले तो मैं नहीं पहचानती थी उनको। जो बात है कि उनके काम के, समाज के लिए, मैं थोड़ी देर पहले ही बताया, जो लोग ऐसे बोल रहे हैं उनका समाज के लिए क्या है मेरे को पता नहीं, वो समाज के लिए क्या किए हैं अभी तक। पर अनिरुद्ध आचार्य जी के बारे में आओ, मैं खुद अपनी आंखों से देख के आई हूँ वो क्या काम करते हैं वहाँ पे। 300 के ऊपर वृद्ध माता की सेवा करते हैं, वो गौ माता की सेवा करते हैं, फिर फ्री में बच्चों को शिक्षा देते हैं। कितने को घर बसाया है उन्होंने। बहुत सारे ऐसे माता पिता है जो असमर्थ है, उन बहन बेटियों को शादी दिया है। आपको पता है जो लोग नशा करते हैं, कितने के घर ऐसे नशा करके उनका घर बर्बाद हो रहा था, उस घर को बचाया है इन्होंने। तो मतलब बात यही हुआ ना, इन लोगों को कुछ करना नहीं है, और जो महात्मा संत लोग धर्मयुक्त काम करेंगे, समाज को सही दिशा दिखाएंगे, ये लोग उन्हीं को टारगेट करेंगे। अच्छा, तो आचार्य जी ने 14 साल वाला बात क्या बोला था? नहीं, आचार्य जी ने ये कहा था कि पहले के जमाने में 14 साल में शादी हो जाते थे। तो क्या होता था, एक लड़की जब 14 साल में ससुराल चली जाती है तो उनके घर में वो बड़े होते थे, सबको देख के मतलब घुल मिल जाते परिवार में। तो डिवोर्स का परसेंटेज देखो पहले के जमाने में इतना नहीं था। तो बात यह है कि उन्होंने ये एग्जाम्पल के तौर पे बताए थे उन्होंने। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि अभी आप 14 साल में शादी दे दो। ये चीजों को ना गलत दिशाओं पे लेके जा रहा है। तो आप पूरा वीडियो देखो कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कभी नहीं बोला आप अपनी बेटी को 14 साल में शादी दे दो, कभी नहीं बोला है उन्होंने। आज के लोग क्या कर रहे हैं, पहले 10 लड़कियों के साथ लिव इन में रह लिया, 10 लड़कों के साथ लिव इन में रह, जो 10 के संग रह चुकी या रह चुका वो एक के साथ बन के कैसे रहेगी या रहेगा। पहले तो ये सोचो, जो 10 जगह मुंह मार चुका है या चुकी है वो एक के साथ बंधेगी कभी या बंधेगा? इसलिए आज सबसे आप कितना भी 21वीं सदी में जीने वाले लोग हैं, लेकिन आज आप रिश्तों में फेल हैं। लेकिन आज की लड़की उठाकर देखो बाजार में कितने परसेंट लड़की साफ है और कितने परसेंट लड़कियां चरित्रहीन हैं, कितने परसेंट समाज का लड़का चरित्रवान है और कितने परसेंट समाज के लड़के चरित्रहीन हैं। आपको बताने की क्या जरूरत है, एक आकलन है, हिसाब लगाइए। मैं बाल विवाह के पक्ष में नहीं हूं। तो अंत में हमारे दर्शकों के लिए कुछ बोलिए। मैं सभी को यही कहना चाहूंगी कि साधु संत लोग जो भी कहते हैं वो शास्त्र अनुसार, धर्म अनुसार बात करते हैं। हो सकता है इस जनरेशन में आके आपको वो बात बुरी लगे, फिर भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी आप चीजों को समझो, गलत दिशा पे मत लेके जाओ। राधे राधे। राधे राधे।